أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم پریکٹس کی تھی ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، رائٹ، اور پھر اس کا ریگولر اینڈ مجہول، مجہول اینڈ معلوم، اور اس کے بعد ہم نے فعل مضارع کی ڈفرینٹ ویریشنس۔ تو کون کون سی ڈفرینٹ ویریشنس تھی مضارع کی؟ لائٹ، ایک ریگولر لائٹسٹ، لائٹسٹ، پھر ہیوی اور ہیویسٹ۔ تو ہیوی کم یوز ہوتا ہے، ہیویسٹ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شیٹ کل بھیجی ہے نا، تو اس میں نے یہ ہیویسٹ کے باقی ورژنس بھی لکھ دیے ہیں یہ، لیکن اس کو گرے کیا ہوا ہے، جو زیادہ یوز نہیں ہوتے نا وہ گرے کلر میں، تو باقی بلیک جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں، یعنی ہوا، ہم، انتا، انتم اور انا اور نحن، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس کے پورا اس کا چارٹ جو ہے وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے تاکہ وہ ریفرنس کرنے میں اگر دیکھنا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے بناتے ہیں۔ ہیوی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ صرف ایک یا دو دفعہ ہی پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو جسٹ اس کے اگزامپل صرف ایک ہی کہ اس میں سنگل نون ہوتا ہے، باقی پھر ہیویسٹ میں ڈبل نون ہو جاتا ہے۔ تو آج کل ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی اور مجہول کی، رائٹ، سو آج ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے علامہ۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے علامہ کا؟ اس نے سکھایا۔ اس نے سکھایا، ہی ٹاٹ، رائٹ، سو اس نے سکھایا، فعل ماضی۔ تو اگر علامہ ہو اور آگے لکھا ہوا آدمہ، تو اس کا اب کیا مطلب بن جائے گا؟ آدم کو اس نے سکھایا، سکھایا آدم کو۔ اس نے آدم کو سکھایا، اس نے سکھایا آدم ڈوور بھی ہے نا ساتھ، ہاں، اس نے سکھایا آدم کو۔ اور اسی طرح اگر اور اس کے آگے ایڈ کر دیں ہم ایک اور ورڈ، الاسماء، تو علامہ نے سکھایا آدم کو آدم اسماء الحسنی، الاسماء، اسماء۔ تو اس کو، تو اس نے سکھایا آدم کو، اور کیا سکھایا کیونکہ وہ بھی نصب ہے نا، تو اٹ مینس another ڈیٹیل۔ تو ایک تو جیسے علامہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے سکھایا، تو کوشچن یہ آتا ہے نا ذہن میں کہ کیا سکھایا اور کس کو سکھایا، تو دونوں اس ڈیٹیل، تو دونوں نصب آئیں گے، تو دونوں اس کے مفعول بھی ہی ہیں، آدمہ بھی ہے اور الاسماء بھی۔ اگر صرف ایک چینج ہم یہاں پہ کر دیں کہ اگر میم کی زبر کو ہم پیش سے کنورٹ کر دیں، سوری میں اس کو عربک کی بورڈ میں کر لوں، تو اس کو ہم اگر یہاں پہ پیش کر دیں آدمو، اب کیا میننگ ہو جائے گی؟ آدم ڈور ہو جائے گا۔ ہاں، تو آدم نے سکھایا، آدم نے سکھایا آدم نے سکھایا اسماء، اسماء کو، نام ناموں سکھایا، کو، نام آدم نے نام سکھایا۔ اب کس کو سکھایا وہ نہیں ہے اس میں، رائٹ، دوسرا مفعول بھی ہی ختم ہو گیا نا، وہ آدمو از اے ڈوور ناؤ۔ اگر ہم دوبارہ اس کو واپس چلتے ہیں، آدمہ ہی لکھتے ہیں اور درمیان میں ہم ادھر ایڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ، تو اب میننگ کیا ہو جائے گی؟ اب میں اس کو اللہ کو ڈور ہو جائے گا۔ اللہ کو ڈور کر دیں، اللہ ورڈ اللہ کے اوپر، اللہ نے سکھایا آدم اب کیا کو ہوگا؟ اللہ نے سکھایا آدم کو نام، رائٹ، نام، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَعَلَّمَ، اللہ کا ورڈ نہیں ہے وہاں پہ، وَعَلَّمَ آدم الاسماء، کہ اللہ نے اس نے سکھایا، تو اللہ از دا ڈوور، تو اللہ ریفرنس ہو رہا ہے وہاں، یہاں پہ ایز اے پروناؤن ہے، تو علامہ آدم الاسماء، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس نے آدم کو نام سکھایا۔ اب اس کو ہم چینج کیا کرتے ہیں، اس میں اس میں ہم اب اس کو مجہول بناتے ہیں، تو جب ہم مجہول بنائیں گے، let me put into next line، تو نیکسٹ لائن پہ لکھتے ہیں اس کو، تو الیما بن جائے گا، رائٹ، تو اس کو ہم چینج کر کے ہم نے کیا کیا ہے، اس کو الیما بن گیا۔
शेरा, उल्लिमा। और इसको हम बनाते हैं आ, रफा। अब इसका मतलब क्या होगा? उल्लिमा आदमुल अस्मा। आदम को नाम अब सिखाए गए। आदम को नाम नाम सिखाए सिखाए गए। गए। तो डूअर सिखाए। भी, हाँ जी, डूअर इसमें हमें नहीं पता, डूअर इज मजहूल, कि डूअर नहीं पता कि किसने सिखाया है। तो आदमू जो है वो नाइबुल फाइल है, यहाँ पे इसको नाइबुल फाइल कहेंगे कि उसको सिखाया गया। और क्या सिखाया गया है? वो नाम सिखाया गया। अब अगर हम इसमें एक चेंज और कर दें, इसको हम नसब बना देते हैं और अस्मा को हम रफा कर देते हैं। अब क्या मीनिंग हो जाएगा? आ, नाम सिखाए गए आदम को। हाँ जी, नाम सिखाया गया आदम। अब नाम, कि वो सिखाया गया, इज नाउ अस्मा इज रिप्लेसमेंट ऑफ वो। तो नाम सिखाए गए आदम को। तो ये चेंज होती है इसमें, कि जब आप रफ़ा और नसब और मजहूल और मालूम इस्तेमाल होते हैं ना, तो इस वेरिएशंस होती। तो अगर हम आदम को नाम सिखाए गए या नाम सिखाए गए आदम को, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंस है, मतलब तो सेम ही है ना। तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हमें कि जो मजहूल में अगर हम किस किस अगर दो हमारे मफूल भी हैं ना, तो किसी एक को आप नाइबुल फाइल बना सकते हैं और दूसरे को आप उसको एज ए मफूल भी ही रख सकते हैं एज ए नसब। तो इसमें मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस दिस वन इज सेम एज, अगर मैं इसको दूसरी तरह लिख दूं तो दोनों का मतलब इज सेम, मीनिंग में सेम है, लिखने में फर्क है। राइट? ये चीज समझ आ गई ना, कि अगर ये सिर्फ हम इतनी सी चेंज करते हैं ना, तो दोनों का मतलब सेम है, कि आदम को नाम सिखाए नाम गए, सिखाए लेकिन गए। सिर्फ कहने का तरीका डिफरेंट है, कि नाम सिखाए गए आदम को और आदम को सिखाए गए नाम। सिर्फ लिखने में डिफरेंट है, मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन अगर वो मजहूल नहीं, अगर मालूम इस्तेमाल हो रहा है जैसे पहला था, उसमें दैट्स मेक अ डिफरेंस। राइट? सो अगर हम एक को हम्म। रफा बना दूं, दूसरे को नसब बना दूं, तो इससे टोटली डिफरेंट हो गया मीनिंग। हम्म। कि नामों ने सिखाया आदम को, अब यही मतलब हो गया ना, हम्म। अस्माऊ ने सिखाया आदम को। तो ये तो हम्म। बिल्कुल रिवर्स हो गया मीनिंग इसका। हम्म। लेकिन अगर हम आदम मुंह को रफा करते हैं, तो देन अस्मा। हम्म। अब क्या हो गया, कि आदम ने सिखाए नाम, आदम ने नाम सिखाए। तो ये इसमें अब मजहूल में इतना फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप एक को डबल, अगर तो एक से ज्यादा उसके मफूल हैं, तो एक को हम नाइबुल फाइल बना सकते हैं, दूसरे को आप नसब रख सकते हैं, मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मालूम है, तो इसमें एक बहुत ज्यादा टोटली अपोजिट हो जाता है। तो ये कुछ फेल पे डिपेंड करता है। कुछ फेल होते हैं उसके दोनों मफूल भी ही होते हैं, यानी किसको और क्या, यानी क्या चीज़ सिखाई और किसको सिखाई। कुछ होते हैं जिनका सिर्फ एक ही होता है, जैसे दाखिला है ना, कि वो दाखिल हुआ। अब वो दाखिल हुआ, अब उसका एक ही, उसने दाखिल किया नहीं है किसी को, खुद दाखिल हुआ है ना, तो इसमें फिर किसको दाखिल किया वाला मफूल नहीं है। उस केस में क्या है मफूल, कि कहाँ दाखिल हुआ है, किस जगह पे दाखिल हुआ है, यानी घर में दाखिल हुआ है या मस्जिद में दाखिल हुआ है। तो उस केस में वो एक, कई दफ़ा एक मफूल भी ही होगा, किसी दफ़ा दोनों होंगे। जो आपको दोनों दो चीज़ें करना, जैसे काताबा में क्या होता है, उसने लिखा, क्या लिखा उसने, राइट? तो उसमें भी एक ही है, काताबा हम्म। उसने लिखा। जब हम कुतिबा कहते हैं, तो वो लिखा गया। लेकिन वो लिखा गया क्या है, इस सेंटेंस है, जो चीज़ लिखी हुई है वो कही जा रही है। आए हम पर्सन नहीं होगा ना, कि पर्सन लिखा गया। हम्म। जैसे कुतिबा अहमदूनी हम लिखेंगे कि अहमद लिखा गया, लेकिन हम्म। कुतिबल कुरान होगा कि कुरान लिखा गया। तो ये एक डिफरेंस बनता है इसमें, अगर हम उसको मफू ये इसमें ये मजहूल और मालूम में ये फर्क होता है। तो हम्म। आज हम इसको आप कमांड्स भी देखेंगे। कल हमने एग्जांपल्स की थी सारी दाखला, राइट? तो अब हम कमांड्स कैसे बनाते हैं वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कमांड में सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन होती है? अलिफ से शुरू। कमांड हमजा से शुरू होता है। मुजारे को लेते हैं उस। मुजारे को लिया, तो ये सारे मुजारे, राइट? हुआ यदखुलु,
और उसके बाद और क्या होता है इसमें, क्या आप या रिमूव करते हैं। नहीं, यार रिमूव तो बाद में करेंगे ना जब लाइटेस्ट। बताएंगे। अलिफ लगाएंगे पहले। सेकंड पर्सन अंता लेते हैं। अंता ओनली, वाला होगा। हाँ जी, जी ओनली जी जी। सेकंड पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन। कमांड्स हो सकती हैं, हुआ में कमांड नहीं होगी। तो ये जो पहले 6 है ना, इसमें कमांड नहीं हम बना सकते, राइट। तो कमांड हम उसको देते हैं जो हमारे सामने होता है, तो अदरवाइज तो कमांड नहीं, तो ये सारे कैंसल आउट हो गए। इसी तरह अपने आप को भी कमांड नहीं दे सकते, और नाहनु को कमांड भी नहीं दे सकते, राइट। तो अपने आप को देंगे तो आप फिर मानेंगे नहीं कि मैंने नहीं करना ये। कहते हैं ना, पढ़ो, पढ़ता हूँ मैं जाके, आज पढ़ता हूँ, नहीं, हम कहेंगे हम नहीं, हमने फोन देखना है। तो कमांड अपने आप को नहीं दे सकते, और तो नाहनु हमाद भाई को। कुछ लोग कह रहे होते हैं ना, चल यार अब उठ के पढ़। हाँ वो तो नहीं पढ़ना होता लेकिन चल चलो, हाँ चलो ये करते हैं। तो कमांड किस में है, सिर्फ 6 है। तो अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। तो कमांड भी होती है और फॉरबिडन, दोनों दोनों इसी में। तो पहले हम फॉरबिडन बनाते हैं, फॉरबिडन इज इजी। तो फॉरबिडन बनाने के लिए अगर हमने कहना है कि ना, ना दाखिल हो, दाखला तो है ला दाखिल तदखुल। हुआ, हमने कहना है ना दाखिल हो, ला तदखुल। तो क्या बनेगा। हम इसको पहले ला ऐड करते हैं इसके शुरू में, तो ला आ गया, ला, और उसके बाद तदखुल। तदखुल। इसको क्या हमने बनाना है, लाइट टेस्ट। लाइट। तो प्रेजेंट टेंस लेना है तो ता ऑलरेडी है, इसको हमने तदखुल कर देना। तो ये उसी तरह रहेगा सारा, और सिर्फ लाम हमारे पे जज़म आ जाएगी। तो जज़म हम टाइप जब करते हैं तो ये सर्कल ही आता है। तो ला तदखुल, तो ये कमांड हो गई। तो इसका क्या मतलब है, तुम एक बंदे को हम कह रहे हैं कि तुम ना दाखिल हो, ला तदखुल, कि तुम दाखिल ना हो। अगर हमने कहना है ना कि तुम बिल्कुल भी दाखिल ना हो या कभी भी दाखिल ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, लन। नहीं लन नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसका हैवीएस्ट यूज करेंगे, ला तदखु। ना। तो लाम हमने खत्म कर दिया, अब नून ऐड करना पड़ेगा ना, डबल नून। डबल नून। तो ला, अब लाम के ऊपर क्या आएगा, वैसे पेश। तो तदखुलू था ना, लेकिन अब क्या आएगा, जबर या पेश। जबर। ला सिंगल तदखुलन। के लिए, सिंगल के लिए जबर आएगी। ये जब हम इसी को अंतुम की कमांड बनाएंगे तब ला तदखुलुन्ना होगा। फिर वो ये, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास वो इसको ना फर्क करने के लिए नहीं है, जहाँ पे जबर होगी इसीलिए वो खा का पेश को जबर में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि ये सिंगुलर को हो। लेकिन इसका जो प्लूरल की जब हम बनाएंगे अंतुम की कमांड, तो तब क्या बनेगी, ला तदखुलुन्ना। तदखुलुन्ना। तो इस सूरत में ला तदखुलुन्ना। तो ये फर्क होगा। तो हम कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल भी दाखिल ना हो, तुम सब बिल्कुल बिल्कुल दाखिल ना हो। पहली में अंता में क्या था, तुम बिल्कुल बिल्कुल भी दाखिल ना हो। तो ये डबल वाला यूज नहीं होता इतना, कुरान में यूज नहीं होता, तो हम उसको स्किप ही करेंगे। तो ला तदखुल, तो अंतुमा अगर होगा, हमने दो को कहना है कि तुम दाखिल ना हो, ला तो तदखुला। ला तदखुला। तो इसको हमने लाइटेस्ट फॉर्म में क्या करना होता है, नून खत्म हो जाता है इसका। तो ये हम इसको सिर्फ ला तदखुला बन जाएगा, अलिफ वाले, ला तदखुला। अंतुम क्या होगा, ला तद, ला तदखुलना। ला रेगुलर तदखुलू। रेगुलर। फिर तदखुलू। ला तुम सब तदखुलू। दाखिल ना हो, ला ला तदखुलू। तदखुलू। ला तदखुलू। तो ये पेश में कन्वर्ट हो गया, वाव एंड एक्स्ट्रा करेंगे हम, लगाएंगे और दोबारा में अलिफ आ जाएंगे, ला तदखुलू। तो ला तदखुलू, तुम सब दाखिल ना हो। तो अंति, अंति क्या आपका, अंति यहाँ भी ला गलत लिखा हुआ है। तदखुली। हाँ जी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ला क्या आना था, तदखु। ला तदखुली। ये यहाँ पे क्या आएगा पहले, लीना। तदखु लीना, जेर के साथ, तदखु लीना। और इसकी कमांड क्या बन जाएगी, ला तदखु ली। तदखुली।
तो इसको लेते हैं हम और इसी को कॉपी करते हैं, तो ये ला तदखुली बन जाएगा। तो इसमें जब ला तदखुली ज़ेरो हो जाएगी यहाँ पे, और फिर या एंड एक्स्ट्रा ला तद, हाँ दोबारा ला तदखुली। तो ला तदखुली, तो तुम औरत को कह रहे हैं हम, लड़की को कह रहे हैं कि तुम दाखिल ना हो। और इसका अगर हमने कहना है तुम बिल्कुल बिल्कुल भी दाखिल ना हो, तो हैवीएस्ट हमने यूज करना है, तो तब क्या करें, कहेंगे हम ادخلنا لا تدخل क्या चेंज करनी पड़ेगी इसमें? ادخلنا شدہ کہیں لگائے گی نا. हाँ जी, कसरा आ जाएगी, तदखुलिन्ना, बिल्कुल। तो ला اچھا. तदखुलिन्ना, तो तीन वर्जन्स हो गए इसके हैवीएस्ट में। अगर जबर हो तो सिंगल को कह रहे हैं हम, अगर जेर हो तो एक औरत, सिंगल औरत को कह रहे हैं, और अगर पेश होगा तो सबको कह रहे हैं, राइट। तो ये फर्क पड़ता है, तीनों तीनों वर्जन हो गए ना, एक तदखुलुन, तदखुलन्ना, तदखुलुन्ना, तदखुलिन्ना, तीनों वर्जन हमें मिलते हैं। अंतम, अंतुमा की दोबारा सेम है, ला तदखुला, जैसे अंतुमा फेमिनन था, सेम एज मैस्कुलिन, तो दोनों। और इस इधर आके अंतुन्ना में क्या बनेगी? لا تدخل تدخلنا. इसका लाइटेस्ट सेम होता है ना, तो इसमें हमें सिर्फ, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ ला आपने शुरू में लगाना है, ला तदखुलना, तो नून उसी तरह इसके साथ, ला तदखुलना। तो ये इसकी कमांड, ये उसकी फॉरबिडन बन गया। तो फॉरबिडन एक तो रेगुलर फॉरबिडन है, और दूसरी پتہ ہے. जोर से कहना है ना कि बिल्कुल हरगिज हरगिज न कर, जैसे ना वला तकूलन्ना लिशैइन ज़ालिका गदा, राइट। सो इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, कि बिल्कुल नेवर एवर से दैट कि मैं ये कल करूंगा, इल्ला इन यशा। तो इस तरह से ये काफी इस्तेमाल होता है, ये ला के साथ तदखुलुन्ना, तो हैवीएस्ट फॉर्म काफी दफा बहुत कॉमन है ये यूज होना, कि बिल्कुल बिल्कुल भी ना करो। लेकिन अगर वैसे इस्तेमाल हो रहा है नून के बगैर, तो इसका मतलब है कि ये कमांड इटसेल्फ इट्स ए फॉरबिडन, बट इट्स नॉट के हरगिज हरगिज ना करो, ज्यादा उस पर जोर नहीं। तो ये तो थे फॉरबिडन, कि नहीं, नहीं कहते हैं ना इसको, नहीं। ला नाहिया इसको कहते हैं, ला नाहिया, कि हम फॉरबिड कर रहे हैं, जिसको नहीं कर रहे हैं ना, ला नाहिया कहते हैं। अगर वैसे हम कहें ना कि तुम दाखिल नहीं होते, ला तदखुलू होगा ना उसका मतलब। अगर तदखुलू है, हम उसके शुरू में ला लगा देते हैं यहाँ पे, आंता वर्जन लेट्स से, तो इसमें हमने शुरू में कहते हैं कि ला, ला तदखुलू, तो इसमें और ला तदखुल में डिफरेंस क्या होगा? पहली मीनिंग क्या है ला तदखुलू? پہلے لائٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ हाँ जी, देखिए کٹن. मीनिंग में क्या फर्क है? ला तदखुलू मीन وہ داخل نہیں ہوتا तुम दाखिल नहीं تم होते, تم داخل نہیں داخل ہوتے نہیں ہو. तुम दाखिल नहीं होते, तो इससे जस्ट स्टेटमेंट। लेकिन ला तदखुल क्या है? تم تم داخل نہ तुम نہیں نہ दाखिल نہ داخل ہو. दाखिल ना हो। हाँ जी, जो जब हुक्म करते हैं ना, किसी को मना करते हैं, उसको ला नाहिया कहते हैं, हा के साथ, नाहिया नहीं से। और जो दूसरा रेगुलर ला होता है ना, कि तुम दाखिल नहीं होते, इसको ला नाफिया कहते हैं, फा के साथ, नाफिया। तो ये सिर्फ नाम है इसके। तो ला नाहिया और ला नाफिया में यह फर्क होता है कि एक को मना करना होता है, और दूसरा जस्ट स्टेटमेंट के नहीं, नहीं करते। तो ला नाफिया तो हुआ के साथ भी हो सकता है, राइट। ला यदखुलू भी हो सकता है कि वो दाखिल नहीं होते, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो कमांड है वो सिर्फ सेकंड पर्सन में होती है, अंत अंतुम अंतुम, अंति अंतुम अंतुन्ना। तो अब इसकी ये तो फॉरबिडन हो गया, अब कमांड इसकी बनानी है। तो कमांड बनाने के लिए ला तो नहीं लगाना होता शुरू में, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ہم الف لگاتے ہیں، تا حمزہ. रिमूव करते हैं, सबसे फिर देखते हैं कि हाँ, जरूरत है कि नहीं हमजा की अलिफ. प्रोसेस क्या है? स्टेप वाइज स्टेप याद रखेंगे ना, तो वो ज्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? लाइट टेस्ट कर देना इसको, لائٹ ٹیسٹ کرو लाइट टेस्ट हो गया। दूसरा स्टेप है तार تا रिमूव करना, शुरू में से ता भी रिमूव हो गया। अब हमने देखना कि पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है।
نہیں پڑھا جا رہا نا، دخل تو نہیں کہیں گے نا، تو ہمیں اب ہاں الف چاہیے. اب ادخل. الف اس کے شروع میں ایڈ کرنا پڑے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، اگر پڑھا جائے تب ضرورت نہیں پڑتی الف لگانے کی، تب کمانڈ بن گئی. لیکن اگر الف کی ضرورت ہے تو پھر الف ہم نے ایڈ کر دیا. اب جب ہم الف ایڈ کرتے ہیں پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ اب اس پہ حرکہ کون سی آئے گی، پیش آئے گی، زبر آئے گی یا زیر آئے گی. تو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو اس کے اوپر مدارے. جو بھی سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے نا، جو خا ہے، جو بھی اس کی حرکت ہے وہ الف کی حرکت. اگر تو پیش ہے تو وہ پیش بن جائے گا، لیکن اگر زبر اور زیر ہے تو ہمیشہ وہ زیر بنے گی. لیکن اس کیس میں دمہ ہے نا، پیش ہے، تو یہ ادخل بنے. ادخل. ادخل، ادخل. تو ادخل مین کے داخل ہو جاؤ. داخل ہو جاؤ. تم ایک بندے کو ہم کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ، دو کو کہیں گے تو کیا کریں گے، ادخلا. ادخلا. ادخلا، تو اونلی زبر اور الف ہے. ادخلا. اور زیادہ کو کہیں گے ہم کیا کریں گے پھر، ادخلو. ہے نا، ادخلو فی السلم کافہ. تو یہ ادخلو، ادخلوها بسلام آمنین جیسے ہے. تو واو آ جائے گا اور الف آ جائے گا. ادخلو، سب داخل ہو جائے. انتی کو کہنا ہے تو ادخلی. ادخلی، تو یہ زیر ہو جائے گی ادھر. تو اب جو کنفیوژن ہوتی ہے نا کچھ اسٹوڈنٹس کو، اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ادخلی اس ورڈ میں نہیں ہے، کچھ ورڈز میں ہوتی ہے، جب آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی ٹھیک ہے. تو ادخلی، ٹھیک ہے نا، ادخلی، تو تم داخل ہو جاؤ. اب دوبارہ دو کے لیے ادخل. ادخلا، right؟ خلا. ادخلا، ادخلا. اور انتنا کے لیے کیا ہوگا پھر، ادخلنا. اللہ. ادخلنا. تو یہاں پہ جزم ہو گئی اور نون ایڈ کر دیے برابر سا، ادخلنا. تو یہ اس میں یہ ہمارا یہ ساری یہ چھ کمانڈز بن گئی. تو یہ چھ کمانڈ ہیں. تو ہمارا گول کیا ہوتا ہے، جب ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سارے کنسیڈر کرنے ہیں کہ کوئی بھی کمانڈ ہو سکتی ہے. ایک بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے، زیادہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور فیمینن بھی یوز ہو سکتا ہے. جیسے ہے نا وہ سورہ فجر میں کیا آتا ہے، یا ایتو ادخلی فی نفس جنت. المطمئنہ ارجعی. تو ارجعی اصل میں رجع سے ہے، right؟ تو رجع یرجیو. تو اگر میں لکھوں ادھر یرجیو، جیم اور آئین ایڈ، تو زیر کے ساتھ، تو یرجیو. تو اس کی کمانڈ کیا بنے گی، ترجی ارجعی. ارجعی بنے گی، رائٹ. تو ترجعین سے بنے گی، تو ہم نے یا ریموو کر دیا. تا ریموو کرتے ہیں تو اس میں اب ہمارے پاس ہم نے یا کا یوز کیا تھا، تو یہ ریموو کر دیا ہے. پھر عورت کے لیے ای. یا ترجعینی تھا آنا تھا نا، تو پھر یہ کیا بن جائے گا اس میں، زیر آ جائے. ارجعی. ہاں، زیر آ جائے گی. اور اب ہم نے شروع میں الف لگانی ہے. تو الف لگانے کے لیے اس کی حرکہ بھی ہم نے لگانا ہے. تو الف کیا ہم نے ایڈ، تو الف ایڈ ہوا. اور اس پہ اب حرکہ کون سی لگے گی، آئین کو ہم نے دیکھنا. کس کو دیکھنا ہے، جیم کو کہ آئین کو، جیم کو. جیم کو دیکھنا، رائٹ. سیکنڈ لاسٹ، آئین جو ہے وہ لاسٹ ہے نا، یا تو ایکسٹرا ہے. تو ہاں جی، تو جیم کی حرکت زیر ہے تو ہمیں یہ کسرہ لگے گی. تما کے علاوہ کچھ بھی ہو تو کسرہ. ارجعی، تو اسی لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اگلی لائن آگے کیا ہے، ادخلی فی عباد. فی عباد. تو اس میں اب ادخلی فا جنت. جب آتا ہے نا شروع میں اس کے، اگر ادخلی کے شروع میں ہم فا لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے،
پیش پہ چلی جائے گی نا. پیش چلی جائے گی، فد خلی بن جائے گا، پھر ادخلی الف نہیں فی. پڑھا جائے گا، جی. پھر یہ فد خلی پڑھیں گے. تو کئی دفعہ واو ہوتا ہے یا فا ہوتا ہے تو پھر الف ختم ہو جاتا ہے، الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو لیکن پڑھا نہیں جاتا وہ. تو فد خلی یا ود خلی، جیسے نا فد خلی فی جنت. جنت فی جنتی، ود خلی فی جنتی، فد خلی فی جنتی، ود خلی عبادی فی عبادی. تو اس طرح ادخلی کمانڈ ہے جو، کیونکہ نفس جو ہے یا تو نفس المطمئنہ، تو نفس از فیمینن، تو نفس کو کہا جا رہا ہے نا کہ داخل ہو جاؤ، تو اسی لیے فیمینن استعمال ہوا ہے. تو اگر میسکولن ہوتا تو پھر فدخل استعمال ہوتا ہے، رائٹ، فدخل. لیکن فدخلی اس لیے ہے کہ وہ فیمینن. تو یہ ریویژن ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے آل. تو اب کوئی بھی ورڈ ہو، اگر جیسے علامہ تھا، یا آ جاتا ہے ورڈ انذرا، آ جاتا ہے انذرا، تو انذرا از اے ماضی. تو اگر ماضی ہوگا تو اس کا مضارع، ابھی تو ہم نے فیملیز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انذرا کا مضارع کیا ہوتا ہے، ینذر. تو یہ ینذر ہوتا ہے، ینذر. تو اس میں یہ ڈیفائنڈ ہے کہ اس کا مضارع ینذر ہوگا. تو انذرا ینذر. تو یہ ہمیں اب ماضی اگر پتہ چل گیا ہے کہ انذرا از ہوا ورژن، تو ہم اس کے سارے بنا سکتے ہیں. ہوا انذرا، ہما انذرا. انذرا، ہم انذر. انذرو، ہیا ہم انذرت. ہیا انذرت انذرت، ہما انذرتا. انذرت، انذرتا اور ہننا ان انذرنا چھوٹا نون، انذرنا. نون کی لمبا نہیں کرنا ہے، نا انذرنا انذرنا انذرنا. پھر انتا ان انذرتا تنظر. انذرتا، انتما ازلتما انذرتما، انتم ازلتم انذرتم. انذرتم، انتی ازلتی انذرتی، انتما انذرتما. ینتما تننا انذرتن. انذرتنا انذرتنا، انا انذرتو انذروا. انذرتو، نحنو انذرنا انذرنا. تو اس کا نون لمبا ہے، یہ انذرنا. تو اسی طرح مضارع میں جب آتے ہیں تو ینذرو، رائٹ. سو یوں ہوا ینذرو، ہما ینذرانی. ینذرانی، ہم ینذرون. ینذرون، ہیا تنذرو. تنذرانی. تنذرو تنذرانی، انذرانی اور ہننا ینذرنا. ینذرنا ینذرنا، زال کے اوپر ینذرنا زیری رہے گی، ینذرنا. تو اس مضارع میں کیا ڈفرنس تھا، پہلے داخلہ یدخلو تھا نا، تو یا کے اوپر زبر تھی، لیکن اس کے مضارع میں یا کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو یا کے اوپر پیش ہی رہے گی نیچے سب میں. تو اس طرح انتا کیا ہوگا پھر، تنذرو. تنذرو، انتما انذرانی تنذرانی، تنذرانی، انتم تنذرونا تنذرتم. تنذی تنذرون. تنذرون، انتم تنذرون، انتی انتی تنذری. تنذرینا، تنذرینا تنذرینا، انتما تنذرانی، اور رانی انتن تنذرنا تنذرنا. انا انذرو الف کے اوپر کیا ہے، انذرو. پیش، انذرو، ہاں جی، انذرو. انذرو اینڈ اور نحنو ننذر. ننذرو اب اگر ہم اس کو جب ہم انذرو لکھتے ہیں اس کو الف کے ساتھ، سو انا ورژن ہے انذرو. انذرو، رائٹ. تو انذرو اور انذرا، تو اس میں بھی پیش ہو سکتی ہے نا، ان اور زیرا بھی ہو سکتا ہے. تو انذرا کیا ہوگا پھر، انذرا کیا بن گیا، مجہول پہلا ورڈ کیا ہے، انذرا کیا ہے، مجہول. مجہول ہے ماضی کا. لیکن یہ ماضی میچ کس سے ہوگا، جیسے عدیل نے کہا ہے نا، یہ تو میچ بھی ہو رہا ہے، انذرو کا لائٹ ورژن بھی ہے.
तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट से हमें कई दफ़ा पता चलेगा, कई दफ़ा एक जैसे हो जाएंगे वर्ड्स, हम्म ठीक है ना। ये उन जीरो इज ए फेल मुजारे, लेकिन उन जीरा जो है वो माजी है, लेकिन अन अगर शुरू में आता है तो उन जीरा भी बन सकता है इसमें मुजारे में। तो ये कंफ्यूजन कभी कभी होगी, लेकिन बहुत कम होता है कि मैच हो, तो यूजली पता चल जाता है, फिगर आउट हो जाता है। तो इसी तरह अगर अगर उन जीरो का मतलब है मैंने, मैं मैंने डराता, राइट, मैं डराता डराता, है। मैं डराता हूँ। मैं डराता। तो मुझे डराया गया क्या होगा फिर? उनजीरा उन उनज़रा उन जीरा होगा कि उन उनजीरी उनज़रू कौन किसको चेंज करते हैं? लास्ट उनजीरा लेटर नहीं चेंज होता, उनजीरा लास्ट लास्ट जैसी ईयर उन उनजीरा नहीं, कौन सी साउंड्स करनी होती है? ऊ और उनजर ऊ और उनजर मुजारे में ऊ और आ आ। माजी में ऊ और ई जो कि ऑलरेडी है उन जीरा, वो हमने मुजारे माजी तो बना लिए। तो मुजारे में ऊ और आ करना पड़ेगा, तो किसको हम आ करेंगे? जा ज़ा को जा उनज़रू आ, तो उन जारू हो जाएगा। उनज़रू इसका मतलब है कि मुझे डराया गया। हम्म किसने डराया ये नहीं पता, मजहूल हो गया है डूअर, लेकिन डन टू इज आई, मुझे डराया गया। तो हम्म उन जारू, तो उन जारू तो इसी तरह युन जारू, जैसे रेगुलर अगर शुरू में था तो युन जारू होगा। तो युन जारू अगर या के साथ है तो ये पहले वाला हुआ वर्जन बन गया ना, तो उसको डराया गया, युन जारू, उसको डराया गया, युन जारू। तो इसी तरह इसका भी, इसी तरह जैसे हमने मजहूल का मालूम का चार्ट था ना, तो इसी तरह इसका भी चार्ट है। हुआ युनजरू, हुमा युनजरानी, हुम युनजरूना, ठीक है ना। फिर मीनिंग में क्या होगा? वो डराया गया, वो दोनों डराए गए, वो सब डराए गए, वो सब डराए जाते हैं, सॉरी मुजारे, वो सब डराए जाते हैं। इसी तरह अंती क्या होगा? तुनजरू, वो डराई जाती है। तो ये मजहूल में भी उसी तरह चार्ट बनेगा, 14 वर्जन इसके भी हैं और 14 मालूम के भी हैं। इसी तरह उनजीरा भी इसी तरह है। अगर माजी में आए हम तो हुआ उनजीरा, हुमा उनजीरा, राइट, अलिफ आ जाता है ना उनजीरा माजी में, उनज़रा उनजीरा, फिर उनजी रू, रू फिर अंती उनजी रत, उनजी हम्म रता। तो जस्ट डिफरेंस क्या आएगा? ये पहली, उनज़िला हाँ जी, स्टार्ट में ऊ की साउंड आएगी और माजी में दरमियान में ई आएगा एक, और मुजारे में ऊ, स्टार्ट दोनों ऊ से होते हैं, लेकिन माजी में ई की साउंड आती है दरमियान में, और मुजारे में आ की साउंड आती है। जी तो ये सारा हमारा रिव्यू था। अब चार्ट को आप अच्छी तरह देख लें। कल हम फिर सर्फ का रिव्यू शुरू करेंगे, सारी फैमिलीज जो हमने पढ़ी थी, अल्लामा जाहदा, तो उसका रिव्यू करेंगे। क्विक रिव्यू होगा, एक दिन में 2-3 फैमिलीज हम कर लेंगे, तो ये 2-3 दिन में वो रिव्यू भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हार्ड सर्फ, इरेगुलर सर्फ उसको कहते हैं, कि और रेगुलरिटीज आती हैं जब उसमें, तो फिर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिर हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप प्रैक्टिस करें इसके चार्ट्स, माजी, मुजारे, मालूम एंड मजहूल, चारों चीज़ें। फिर कमांड्स, कमांड्स भी उसी तरह, कमांड्स एंड ला नाहिया, नहीं एंड कमांड, क्योंकि यही इस्तेमाल होते हैं ना, हमें पता है ना। माजी जब हम पढ़ते थे अल्लामा युअल्लिमु तालीमन फाहुवा मुअल्लिमुन उल्लिमा युअल्लमु, तो इसमें माजी दूसरी लाइन मजहूल की होती थी, तो मजहूल भी हमें आने चाहिए। और फिर तीसरी लाइन में क्या होता था? वल अम्रु मिनहु, कमांड, वन कि कमांड कैसे बनती है, वन और फिर नहीं उसके बाद नहीं अन हो, कि मना कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें उस सर्फ का पार्ट है, जो उसके 10 वर्ड्स बनते हैं, डिफरेंट वर्ड्स। तो वो चार्ट्स अगर आपको याद हो गए ना अच्छी तरह, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो चार्ट आप याद कर लें अच्छी तरह, 1-2 दिन लगा के, ये अगले वीक तक आप बिल्कुल रेडी हो, ताकि इसके तो कल इंशाल्लाह हम फैमिलीज का रिव्यू शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना रिव्यू हो गया हमारा कंप्लीट इंशाल्लाह। तो कोई क्वेश्चन हो इस रिव्यू में? सही वर्ड पे खत्म किया तुमने, डराने वाले। डराने वाले पे किया, तो अब डरना है ना, चाहिए। उमाद, ये जो सबसे हाँ पहला जी, से उल्लिमा आदमुल ये अल अस्मा है, तो ये हाँ जी। इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स होंगे या फिर जनरल होगा ना?
अल अलिफ लाम। अल जो होता है ना, अल अल की एक तो ये प्रॉपर जब बनता है ना नाउन, तो या तो होता है उसका मतलब कि स्पेसिफिक चीज, या अगर कई दफा अगर प्लूरल में इस्तेमाल हुआ हो ना अल के साथ, तो इसका मतलब है सारे, ऑल द ठीक। नेम्स। ऑल द। अल्लामा आदमुल अस्मा, आगे इवन कुल्लहा इवन आगे स्पेसिफाई भी हुआ है आयत में, राइट, मिन कुल्ली, कुल्ली शैइन भी है ना आगे, है अब्दुल्ला, जी आगे कुल्ली शैइन भी, कुल्लहा कुल्लाहा है ना, कुल्ला भी है, लेकिन अल अस्मा भी अगर इस तरह से इस्तेमाल होता है, इट मीन्स के सारे, सारे नाम। अरे ना। हाँ ठीक। जी, आगे कुल्लाहा के साथ सारे, उसमें कुल भी है, लेकिन वैसे भी अलिफ लाम का के दोनों, जैसे जैसे हम सूरह फातिहा में ना अल-हम्दु, तो इसमें स्पेसिफिक तारीफ भी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सब तारीफ है, दोनों, दोनों मीनिंग में आता है। तो इसीलिए आप देखें ना ट्रांसलेशन में क्या लिखा था, ऑल द प्रेज, ऑल द। ऑल द प्रेज, सब तारीफें अल्लाह के लिए। और ठीक। अल्हम्दु एक स्पेसिफिक तारीफ भी हो सकती है, जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे अच्छा। मकाम महमूद पे, जब वो तैनात होंगे तो उस टाइम पे वो तारीफ करेंगे ना, तो वो अल्हम्द है कि वो स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें सारे सारे की मीनिंग में भी होता है ये। सारे ना। ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह की खैर। कमांड जो होती है वो डिफरेंट होती है। हाँ, अनजारा युनजिरु की कमांड डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हमजा से स्टार्ट होती है। इसमें थर्ड अनजिर, लेटर नहीं देखना। नहीं, इसमें इसमें होती है अनजिर है, हमेशा हमजा के ऊपर फतह होगी, जबर होगी, अनजिर, अस्लिम। तो ये इसकी स्पेशल, इसकी कमांड स्पेशल। और दूसरी जो दाखला के साथ हमने जो लगाया था ना, ये इस अलिफ, इट्स नॉट हमजा, ये जो शुरू में हम कमांड में अलिफ लगाया हुआ ना हमने, ये अलिफ है, हमजा नहीं है। तो अलिफ और हमजा में डिफरेंस होता है, हमें जो हम कुरान पढ़ते हैं ना सब कॉन्टिनेंट में, हमारा जो छपा हुआ होता है उसमें अलिफ और हमजा में फ़र्क नहीं होता है, स्पेशली अगर शुरू में आ रहा हो। एंड पे अगर आ रहा है तो वो हमजा लिख देंगे, लेकिन शुरू में वो अलिफ और हमजा सेम होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है पढ़ने में, हमजा आपने हर हाल में पढ़ना है, हम्म, लेकिन अलिफ स्किप कर सकते हैं। जैसे वदखुलू करेंगे, अगर वाव आ जाता है ना उदखुलू से पहले, तो हम क्या करेंगे, वदखुलू, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर कमांड अनजिरू होती है ना, अनजिरू के डराओ उनको सबको, तो वन जीरू नहीं हम पढ़ेंगे उसको, व अनजीरू करना पड़ेगा उसको, तो हमजा उसका पढ़ना पड़ता है। तो ये फर्क होता है हमजा में, अलिफ और हमजा में, कि अलिफ स्किप हो जाता है अगर मिला के पढ़ रहे हो, या वाव शुरू में आ गया, फा आ गया, लेकिन हमजा इज मस्ट, पढ़ना उसको मस्ट है। तो जो अद खाला जैसे है ना, अखराजा जैसे कमांड है, अखराजा, अखरिज कमांड है ना, अखरिज, तो हमने वा अखरिज पढ़ेंगे, वखरिज नहीं पढ़ेंगे उसको। लेकिन खाराजा का दूसरी फैमिली में भी वर्ड है खाराजा, यखरुजु, तो यखरुजु की कमांड क्या होगी फिर, ये दाखला उखरिज। यदखुलू की तरह ही है ना, खाराजा अखरज। यखरुजु, तो अखरज। उदखुल, उदखुल होगी ना, उदखुल। उदखुल। लेकिन अगर वर्ड उखरिज अखराजा है तो फिर अखरिज होगी, अगर वर्ड खाराजा है तो उखरुज होगा। तो ये फर्क है दोनों में। खाराजा का होता है कि वो निकल गया, लेकिन अखराजा का होता है उसने निकाला, यानी किसी को निराला निकालना है, एक्सपेल करना, तो वो अखराजा का वो डिफरेंस है मीनिंग में। तो इंशाल्लाह कल से हम फैमिलीज पढ़ेंगे, उसका कैसे फैमिलीज हम बनाते हैं उसकी थोड़ी सी लॉजिकल करेंगे उसकी डिस्कशन, और उसके बाद फिर एक्चुअल फैमिलीज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अदद खल्किक व रिदा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्रु कुल्लु व इलैका युरजी कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रुहु فأهل أنت أن تحمد فأهل أنت أن تعبد نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا آمين واهدنا وعافنا واعف عنا. آمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا شافي الأمراض آمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين جزاکم جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.